Okay, so today we'll start with a new story, a small section of story that somehow tells you something new. Okay, so what it is written over here that the ultimate sacrifice. अल्टीमेट का मतलब होता है इन द एंड, जो सैक्रिफाइस, जो बलिदान किसी ने दिया, तो हमें किसी की सैक्रिफाइस के बारे में पढ़ना है, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस. ठीक है. एंड दिस अल्टीमेट सैक्रिफाइस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़, एंड दैट नॉवल वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकन इन विच ईयर 1859. Okay, so A Tale of Two Cities 1859 is a novel by Charles Dickens. Okay, so this is a novel, A Tale of Two Cities, and this novel was written by Charles Dickens. Okay, so this novel uh, sets in two cities of London and Paris. It means that I'm here talking about the setting of the novel. There is only two cities, that is London and Paris. Okay, these two cities of London and Paris. It means London is not a city. London is a capital of UK and Paris is a capital of France, but both belongs to the same continent, that is Europe. Okay, so what it is written that during the French Revolution several changes happened in Paris, that is the capital of France. What is that changes is that before French Revolution the France kingdom has monarchy. Okay, the France kingdom has monarchy. France के kingdom में पहले monarchy थी. Okay, और वो monarchy को ख़त्म किया इस फ्रेंच रिवोल्यूशन ने और इस्टेब्लिश किया एक रिपब्लिक को. ठीक है. ड्यूरिंग अ वायलेंट पीरियड ऑफ पॉलिटिकल turmoil. Okay, so that violent period of political turmoil, it means that कि बहुत ज़्यादा वायलेंट हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा हुई, उस पॉलिटिकल टर्मोइल, उस पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए या उस पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के लिए जो ऑलरेडी था, दैट इज़ द मोनार्की, राइट. तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता रहा. Monarch and aristocrats were tried for treason and sentenced to death during the revolution. It means कि वो French Revolution that was happened in the Kingdom of France, उस समय जितने भी monarchs होते थे, means an individual body who headed the whole country. So that monarch and aristocrat, यानी aristocrat means the person who belong to the noble level, जो noble level से हो या जिसकी बहुत ज़्यादा सोशल वैल्यूज़ हो, हाई स्टेटस का बंदा हो, वो अरिस्टोक्रेट्स हैं. सो उन लोगों को, मोनार्क को और दिस अरिस्टोक्रेट्स, दीज वर sentenced to death. Why they were sentenced to death? Because वो tried for treasons. मीन्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि treasons का मतलब होता है betrayal. ओके, मीट betrayals toward the कंट्री. कि अगर आप अपने देश को धोखा दे रहे हो, इट मीन्स दैट इज़ द ट्रेजन. ओके, सो यू विल completely get the whole story at the end and you will understand what actually the sacrifice will be. Okay, so what it is written, okay, so that was the treason and sentenced to death during the revolution. Charles Darnay, being from the French aristocrat Ermonde family, it means that एक बंदा है, दो ही कैरेक्टर हैं ज़्यादातर इन द स्टोरी. बिगिन कर मैं आपको स्टोरी जो है बिगिन करने से पहले कुछ कैरेक्टर्स बता देती हूँ. एक्चुअली स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है और स्टोरी के कितने कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, पहले तुम स्टोरी का कैरेक्टर देख लेते हैं. एक है चार्ल्स डार्ने, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, दिस चार्ल्स डार्ने, वो हु इज़ दिस चार्ल्स डार्ने? दिस इज़ अ फ्रेंच एरिस्टोक्रेटिक एरमोंडे फैमिली. ये एक फ्रांस की बहुत हाई सोशल लेवल फैमिली से बिलोंग करते हैं. ओके, एरमोंडे फैमिली से ये बिलोंग करते हैं. और दूसरा कैरेक्टर है सिडनी कार्टन. This character is an alcoholic attorney. Attorney means the lawyer.
So this is a young alcoholic lawyer. This is a well educated person. Okay. And the third character is Lucy. As you can see over here, woman talking about Lucy. So who is this Lucy? This female character Lucy is the wife of Darnay. Darnay, the aristocrat, Evermonde family. Okay, so she is the wife of Darnay. Sidney Carton, that is an alcoholic lawyer. And one more character is the which is not mentioned over here, but you will study later on this in the story. That is the a poor girl, a poor young girl who is actually the servant. Okay, so she also sacrifices her life. So these two male characters and these two female characters play a very important role in this whole story. Several other characters are also present in this, but the main central characters are all these only. Okay, so I'm just simply reading the first paragraph, that is the tale of two cities, and till the wife Lucy. Then only you will get and the main actually the theme of this story. Okay, and I'm sure that I will be clear to you with the concept of characters. There are two male characters, two female characters. Charles Darnay and Sidney Carton are the two male characters. Lucy and that a young servant girl, that is the female character. Okay, so the theme of this story is that how humankind sacrifices their life with respect to other humankind relationship, or with the or you can say uh, with the for the sake of their country. Okay, they are just sacrificing their life, and sacrifice is not a small thing. Sacrifice itself is a very great thing. Okay, so this chapter concluding the sacrifice of Sidney Carton. Who is that Sidney Carton? A young alcoholic lawyer, okay, who ultimately replaces himself with the identity of Charles Darnay and just sacrifice his life in place of him. And what happened to Darnay? Darnay will migrate with his wife and this father-in-law to London. They were in, and this what happened, what all type of tragedy that is going to be happened, that was not in London, that was only in the Paris. Okay, so don't get confused about any of the concept. I am very precise with the concept that whatever tragedy will happen, that happened in Paris, and only the Darnay and his wife and his father will migrate, will move to, will return to London with his family. Okay, they have also one thing that I just miss it out over here, that Jane has a wife and a daughter as well. Okay, so he has a complete family. I'm not talking a complete, but he has a good family. Okay, so I'm just start reading. Oh, one thing I just also want to explain you over here. You can see the term over here, guillotine. What do you mean by guillotine? Guillotine is the machine. Okay, this machine is used for cutting paper in France, but now this machine will cut the heads of the aristocrats and monarch. Okay, clear? So they were sentenced to death by the machine, or by guillotine. Okay, so guillotine is the machine. Now this much is clear. I don't think any hard word is present in that green section. uh, Everything I just clear it out. Okay, now let's start reading. A Tale of Two Cities 1859 is a novel by Charles Dickens. So this novel has been written by a great writer and author, Charles Dickens. This novel has been written in the year of 1859. Okay, that was the year
after the French Revolution. It means Charles Dickens was already not in his mind, stable mind, and he was already very much upset, very much confused. Okay, so his mind is not stable. So he wrote a very, you can say, a tragic novel. This is a tragic novel. Okay, so A Tale of Two Cities is a novel by Charles Dickens set in two cities of London and Paris before and during the French Revolution of 1789. So this French Revolution is going to be happened in 1789, and he wrote the novel in 1859. Who wrote the novel over here? Charles Dickens. What is the name of that novel? A Tale of Two Cities. And what are the two places that had been set in this novel? That is the London and Paris. Okay, go ahead. The revolution overthrew the monarchy. It means the revolution ended the monarchy and established a republic, and just introduced a republic in the Kingdom of France. So, during a violent period of political turmoil, and what all these things happened by the so much, by creating so much disturbance and all, then only thing gets settled. Just like अगर आपको कोई चीज़ सेटल करनी है, now you have to clean your cupboard, you just have to pick all the things from your cupboard. That it means you are disturbing the pre-existing thing, and now you are introducing or decorating your cupboard in a new way. That was the thing that is written over here. So monarchs and aristocrats were tried for treasons. They were tried for treasons. Treason, I have already told you, just betrayal for the country. के betrayal, आप अपनी country को धोखा दे रहे हो, इसका कोई आप पे आरोप लगा दे, that was the treason. So monarch and आरोप लगा दे या फिर आप ऐसा कर रहे हो, that was not the main thing. Main thing है कि हाँ आप अपनी country के साथ betray कर रहे हो, ठीक है. Betrayal हो रहा है, country के साथ धोखा हो रहा है. Okay, so what it is written that monarch and aristocrats were tried for treason and sentenced to death during the revolutions. Okay, so चार्ल्स डार्ने being after the, अब इस चार्ल्स डार्ने को ही क्यों अरेस्ट किया जाता है? बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी टोल्ड ओवर हियर दैट monarch and aristocrats were tried for treasons. उन पर यह आरोप है कि आप अपनी कंट्री के साथ गद्दारी कर रहे हो. Okay, so this Charles Darnay, he is an aristocratic, French aristocratic. It means he belongs to a very noble family. He has a very high status in the society. So this French aristocratic Ermonde family, Charles Darnay, was arrested, and he was secretly. Why he was arrested? Because people think that he was a spy, and he was secretly visiting Paris from London, and later condemned to death. It means he was shifting his place frequently from Paris to London, London to Paris, and he has a treason, and he was a treason, and he was treasoned for of being a spy. That he is a spy, and he just revealing the secrets of Kingdom of France to London. Okay, so that's why he was accused. He was arrested. Ultimately, in the end, but he was not dead in the end. हाँ भले उस पर आरोप लगे हों, उसको अरेस्ट किया गया हो, लेकिन उसकी डेथ नहीं होती है. डेथ होती है सिडनी कार्टन की. ओके, सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट सिडनी कार्टन की डेथ होती है, चार्ल्स डार्ने की डेथ नहीं होती है. इट मीन्स कि ये जो लैप्स है ना, कि चार्ल्स डार्ने का जो सस्पेंस है कि चार्ल्स डार्ने वाज अरेस्टेड एंड हाउ सिडनी कार्टन वाज सेंटेंस्ड टू डेथ. व्हाट इज दैट लिंक बिटवीन देम? What happened between them? So that will explain in the story ahead. Okay, so this Sidney Carton sorry, a young alcoholic attorney, he just selflessly switched places with Darnay. It means that he goes with Darnay to London, okay, sacrificing himself so that the woman whom he loved, Lucy, could return to London with her husband Darnay. It means कि ये जो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? ये डार्ने का हस्बैंड है. सॉरी, आई एम सॉरी दैट दिस डार्ने इज द हस्बैंड ऑफ लूसी. Okay, so this Sidney Carton helped Darnay to move to this London, okay, with her wife. I'm sorry, little thing are just slipping from my tongue.
Okay. Ultimately, Sidney Carton, a young alcoholic attorney, selflessly switched places with Darnay. Okay, he just selflessly, without caring about himself, he selflessly switched places with Darnay, sacrificing himself. Switch places with Darnay, it means he just placed himself in what actually was Darnay. कि एक्चुअली ये होता है कि डार्ने जो है वो पहले जेल में होता है, and this Sidney Carton, he just switched his place with Darnay. ओके, एंड सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, और अपने आप की वजूद का, अपने आप का वो सेक्रीफाइस कर देता है, ख़त्म कर देता है अपने आप को, सेंटेंस टू डेथ को अपने ऊपर ले लेता है, सो दैट द वुमेन, जिसलिए क्योंकि डार्ने जिस वुमेन से प्यार करता है, लूसी से, वो उसको लेकर लंदन चला जाए अपनी बेटी के साथ. दिस इज़ एन एब्रिज्ड स्टोरी, ये एक एब्रिज्ड स्टोरी है, एक चैप्टर नॉवल में से, कंक्लूडिंग चैप्टर ऑफ दिस नॉवल, नॉवल के अंदर एक चैप्टर है और उसकी ये एक एब्रिज्ड स्टोरी है. ठीक है, इसमें सिडनी कार्टन जो हैं ये रिजेंबल्स करते हैं डार्ने को, अपने आप को दिखाते हैं कि मैं डार्ने हूँ. एंड हाउ ही मेक हिमसेल्फ, माउल्ड हिमसेल्फ सो दैट he resembles to Darnay. He takes his place and dies on the guillotine, while Darnay returns to London with his wife Lucy. Okay, so this will happen at the end, but how this will happen we have to read in the story. Okay, so written in over here, in the presence of Consigliere, the doomed of the day awaited their fate. Yani Consigliere is the place, that is the place in this Paris. Here peoples are make prisons, and the doomed of the day, मतलब doom का मतलब होता है जो चीज़ पक्का पता है कि ख़त्म होने वाली है, अब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो. जो जैसे आपको पता है कि अभी ये दिन है तो आज का दिन तो ख़त्म होने वाला है. नो वन कैन स्टॉप एक्सेप्ट द गॉड. सो द डूम्ड ऑफ द डे अवेटेड देयर फेट, कि उस प्रिजन में, द प्रिजन्स ऑफ कंसाइजरी, दैट प्रिजन्स, जो जितने भी प्रिजनर्स हैं वो दिन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं. मतलब वो उन लोग को पता है कि ये दिन भी ख़त्म हो जाएगा, फिर उन लोग को सेंटेंस टू डेथ, उनको सेंटेंस टू डेथ हो जाएगी, वो लोग मर जाएंगे, उनकी लाइफ सेक्रीफाइसेस हो जाएंगी, वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे. जितने भी उनके होप्स, डिज़ायर इस दुनिया को लेकर हैं वो सब फिनिश अप हो जाएंगे. दे ऑल जस्ट डूम्ड अवे, कि सब ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे. और कितने लोग हैं उस प्रिजन में? दे वर इन नंबर एज द वीक्स ऑफ द ईयर. एज यू ऑल नो कि एक साल में 52 वीक्स आते हैं. सो हाउ मेनी प्रिजनर्स आर देयर? दे आर 52. 52 हेड्स वर टू रोल दैट आफ्टरनून. इट मीन्स कि उस आफ्टरनून पे, यानी उस दिन, वो जो दिन है, द डे है, उस डे के आफ्टरनून में वही 52 हेड्स को काटा जाएगा. मैंने आपको पहले बोल दिया था, गिलोटिन एक मशीन है जो पेपर कट करती है, उसी से लोगों के सर काटे जाएंगे. एंड दैट इज टेलिंग ओवर हियर, फ्रॉम एन अरिस्टोक्रेट whose riches could not buy his life, to the servant of a girl of 20 whose poverty and obscurity could not save her. अब यहाँ पर दो अलग सेक्शन रखे गए हैं सोसाइटी के. एक वो जो बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत सोशल नोबल लोग हैं, और एक वो जो बहुत ही पॉवर्टी, यानी बिलो पॉवर्टी हैं, बहुत गरीब हैं. तो वो ये कह रहे हैं कि ये लोग किसी पे तरस नहीं खाएंगे, ये लोग किसी पर भी तरस नहीं खाएंगे. एक एरिस्टोक्रेट जिसके पास बेइंतहा पैसा है, वो अपनी ज़िंदगी नहीं खरीद सकता इफ़ ही हैज़ सेंटेंस टू डेथ. और ना वो सर्वेंट गर्ल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ना वो सर्वेंट गर्ल जो है जिसकी उम्र 20 साल है, वो अपनी गरीबी से, अपनी ऑब्सक्योरिटी से, अपने भद्देपने से, नहीं यार ये तो बेचारी है, ये क्या करेगी, इसको जाने दो, ये सब जो है, no, not allowed. If he or she has been sentenced to that, it means she has to leave this world, and their heads were rolled in that machine. What I'm talking over here is guillotine machine. Okay, so before it had set in dark on the night of condemnation, before it had set, यानी कि condemnation के हाँ पे condemn हुआ, आरोप लगा है, तो आरोप लगाया जा रहा है. तो बिफोर इट हैड सेट इन डार्क ऑन द नाइट, जब आप, मतलब यहाँ पे ना, जिस दिन आरोप लगा उस दिन के रात को, जब अंधेरा हो रहा था,
चार्ल्स डार ने अपने सेल का मतलब जेल होती है, चार्ल्स डार ने अपने सेल में अकेले बैठे थे, उन पर ये आरोप लगाया था क्योंकि वो एक अरिस्टोक्रेट थे। पर सिर्फ ये है कि अरिस्टोक्रेट से एक सोसाइटी, सोशल हाई सोसाइटी से ही मतलब उनका सोशल स्टेटस था, तो इन पर आरोप लगा दिया गया था कि they are the spy and they are just revealing the secrets in information to from London, Paris to London. Okay, so this Charles Darnay sat alone in a cell being allowed to purchase the means. अब उस समय जो था क्या था कि चार्ल्स डार्ने जो थे वो अकेले सेल में बैठे हुए थे और उनको इतनी इजाज़त थी कि हाँ आप लिखने के लिए कुछ तो मंगा सकते हो। मतलब अब सबको पता था भैया ये तो मरने वाला है, इसकी आखिरी ख्वाहिश, ऐसा होता है ना। सो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, परचेज द मीन्स ऑफ राइटिंग, वो जो है ख़रीदते हैं, उनको अलाउ था कि आप ख़रीद सकते हो लिखने के लिए कुछ, और एक लाइट, एंड ही सैट डाउन टू राइट, और फिर वो लिखने के लिए बैठ जाते हैं। अनटिल सच टाइम एज अ प्रिजन लैम्प, उस समय क्या होता था कि जितने जो प्रिजन के जो जेल में जो लैम्प होते थे वो लैंप जो होते थे वो बुझा दिए जाते थे। अब उनके पास रोशनी होती नहीं थी तो ही हैज़ टू बाय अ लैम्प सो दैट with that enlightenment, with that you can say light, he can able to write. So he wrote a long letter to Lucy. अब now Lucy, शी इज़ द वाइफ ऑफ डार्ने, सो वो अपनी वाइफ को एक लंबा लेटर लिखते हैं। He told her that he had known nothing of his family responsibility for her father's imprisonment, told her take care of her father and her daughter. Means यहाँ पर उस क्योंकि इसके फादर भी तो अरिस्टोक्रेट थे, तो यहाँ पर बोल रहे कि भैया मुझे नहीं मालूम है कि भाई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाई जाती है। यहाँ पर शायद उसके फादर्स को भी इम्प्रिजन किया गया हो, कैद किया गया हो, उनको भी जेल भेजा गया हो, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो अपने फादर, टोल्ड हर टू टेक केयर ऑफ अ फादर, और तुम जो मेरी बेटी का और फादर का ख्याल रखना, ठीक है। आई एम नॉट श्योर वर हियर कि हाँ उसके फादर को इम्प्रिजनमेंट हुई है कि नहीं हुई है। मतलब यहाँ पे वो अपनी बात भी कर सकता है कि नहीं, उसको नहीं पता कि फैमिली में फ़ादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इस समय फैमिली का जो फादर है वो जेल में है, ठीक है। सो उसे नहीं पता कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो अपनी बीवी को ये लेटर लिख रहा है कि उसके फादर की, यानी उसके अपने फादर, रियल फादर की, डार्नेस फादर की, और उसकी बेटी की जो कि अभी छोटी है, उसका ख्याल रखना। और मैं ये अश्योर्ड करता हूँ, मैं ज़रूर ये पक्के से कहता हूँ कि हाँ एक दिन हम सब हेवन में एक साथ रहेंगे। यहाँ इस दुनिया में तो नहीं है भाई, लैंड में तो नहीं रह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज टर्मोइल, बट आई विल प्रे दैट कि हाँ हम लोग हेवन में साथ में रहें। ओके, सो ही रोट टू हिज फादर इन लॉ, अब वो अपने फादर इन लॉ को लिखता है लेटर कि डॉक्टर मैनेट, डॉक्टर मैनेट जो उसके फादर इन लॉ हैं डार्ने के, सेइंग मच द सेम एंड आस्किंग हिम टू टेक केयर ऑफ हिज विडो एंड डॉटर। अब भाई जब वो मर जाएगा तो वो यहाँ पे क्या होगा, तो उसकी वाइफ क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली उसकी वाइफ विडो हो जाएगी। सो वो अपने फादर इन लॉ से कहते हैं भाई, अपनी वाइफ से ये कहता है कि उसके फादर की और डॉटर का ख्याल रखना, और यहाँ पर वो अपने ससुर से, डॉक्टर मैनेट से ये बोल रहा है कि तुम मेरी बीवी है, मेरी जो विधवा है, विडो रहेगी, और मेरी जो बेटी रहेगी उसका ख्याल रखना। ओके, टू मिस्टर लोरी, और एक मिस्टर लोरी हैं, अनदर कैरेक्टर, ही रोट एक्सप्रेसिंग हिज फ्रेंडशिप। ओके, सो व्हाट ही राइट दैट नाउ ही राइट टू मिस्टर लॉरी, वो मिस्टर लॉरी को लिख रहे हैं। ही रोट एक्सप्रेसिंग, वो मिस्टर लॉरी उनके दोस्त हैं, वो उस पर अपनी फ्रेंडशिप बता रहे हैं कि भाई तू मेरा अच्छा दोस्त था और मैं तेरी बहुत इज्जत करता था एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, जैसे कि फ्रेंड को लेटर लिखा जाता है। आस्क हिम टू टेक केयर ऑफ इट, कि वो कहता है कि ठीक है भाई तुम मेरे ना मौजूदगी में, क्योंकि अब तो मैं नहीं रहने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे फैमिली अफेयर्स को, मेरे फैमिली मैटर में अगर मेरी फैमिली को दिक्कत आती है यार, तू खड़ा रहना, तू हेल्प आउट करना मेरी फैमिली को, ठीक है। सो वेन ही ले डाउन ऑन हिज बेड, अब वो इतना लिखने के बाद बेड पर लेट जाता है। ही थॉट ही हैड फिनिश्ड विद दिस वर्ल्ड
एंड नाउ अब वो बोलता है कि बस अब मेरी दुनिया की जिम्मेदारी, ओके सो क्या कहता है कि अब मेरी जो दुनिया की जो जिम्मेदारी है वो अब ख़त्म हो गई है, अब तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने लेटर्स लिख किया, सबको सब समझा दिया एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो इन ही स्लीप, लेकिन जब वो सो रहा होता है ही वॉज फ्री एंड हैप्पी, वो बहुत अपने आप को खुश देखता है सपने में। बैक इन द हाउस इन सोहो लंडन विद लूसी अगेन, अब क्या होता है कि वो देखता है सपने में कि वो अपनी वाइफ के साथ उस है अपने घर में, लंदन में है, लंदन के सोहो, लंदन इज़ द कैपिटल एंड सोहो इज़ द प्लेस ओवर देयर। सो सोहो में वो अपनी वाइफ के साथ हंसी खुशी रह रहा है, और उसकी वाइफ कह रही है अरे जो अभी आपने जिसके बारे में ना अभी आप फ्रांस में सब जो हो रहा है आपको ये सब जो कहा गया है वो सब सपना था, दैट वॉज नॉट ट्रू, हम कभी पेरिस गए ही नहीं। सो ही वोक अप इन द ग्रे, लेकिन फिर क्या होता है कि उसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि वो रात का समय था तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, सारी चीज़ें उसने लेटर्स भी लिखा और ना ये सारे ड्रीम आउट किए। फिर क्या होता है कि जब सुबह हो गई होती, जब सूरज एकदम बस हल्का हल्का निकल रहा होता है, ग्रे ऑफ अर्ली मॉर्निंग, है ना, नॉट नोइंग वेयर ही वॉज वॉट हैड हैपन, अब वो खुद, क्योंकि सपने में तो उसे भाई बोल रही थी उसकी वाइफ कि हम भाई कभी पेरिस गए ही नहीं, और वो एक्चुअली पेरिस में था, तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल था, उसका माइंड स्टेबल नहीं था, ही वॉज वेरी कन्फ्यूज। देन ही रियलाइज इट वॉज द डे ऑफ हिज डेथ, और इस समय उसको ये ख्याल आता है कि बस पहले उसने बोल दिया था कि वो जो दिन था वो ख़त्म होने वाला है, इट मीन्स वो लास्ट डे था उसका, अगले दिन उसकी जो है मौत निश्चित थी, अगले दिन उसको वो उस मशीन से उसके सर को काट देना था। तो वो बोल रहा था ये बातें इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। सो अब उसको ये रियलाइज्ड हो गया था कि हाँ अब ये दिन आ गया उसकी मौत का, अब तो उसे मरना है। ही फेल्ट स्ट्रेंजली काम, वो अपने आप में अजीब शांति महसूस कर रहा था। एंड होप ही कुड मीट हिज एंड ब्रेवली, और वो आशा कर रहा था कि वो अपने इस आखिरी समय में कायर नहीं बनना चाहता। कायर मीन्स बहुत ज़्यादा कावर्ड नहीं बनना चाहता, ना डरपोक डरा सा नहीं बनना चाहता है, वो चाहता है कि वो इस आखिरी समय में भी ब्रेवली हर चीज़ को फेस करे, ब्रेव रहे। बट एज द आवर्स वेंट स्लोली बाय, जैसे जैसे ना घंटा कट रहा था, आवर्स कट रहे थे, ही हैड मोर एंड मोर डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग हिज थॉट, अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, अपने सोच पे उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जितना वो पहले कर पा रहा था। इट मीन्स कि नहीं वो अब जो है हर प्रॉब्लम्स को ब्रेवली सॉल्व करेगा, वो एक ब्रेव वॉरियर के तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो जैसे लेकिन धीरे धीरे नहीं होता, एक ह्यूमन का एक वीकनेस होती है कि नहीं पहले प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, पहले प्रॉब्लम्स जो हैं दूर होती हैं तो वो कहते नहीं नहीं मैं तो कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब वो अपने आप को समझा रहा है, लेकिन उसका माइंड ना ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि भाई ये इसका आखिरी दिन है एंड नाउ द नेक्स्ट फ्यू आवर्स ही इज़ गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड। तो उसकी जो ब्रेवरी है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो रही है। टाइम ड्रैग्ड ऑन, द क्लॉक रिंगिंग आउट नंबर्स ही वुड नेवर हियर अगेन, वो अब नहीं होता नॉर्मली, हम घड़ी को तो बस टाइम देखते हैं सिंपली एंड जस्ट वॉज लुकिंग एल्सवेयर एंड गेट बिजी इन आर वो रूटीन्स अगेन। लेकिन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे समय की बहुत कीमत बताई जा रही, क्योंकि जैसे जैसे समय कट रहा है उसके मौत का समय करीब आ रहा है चार्ल्स डार्ने का। ओके सो ही वॉज वेरी अफ्रेड फ्रॉम इनसाइड, वेरी अफ्रेड। सो उस जो क्लॉक है ना वो आप समय गिन रही है, 12 11 जो काउंटडाउन होता है वैसा, ठीक है। एंड ही वॉकड अप एंड डाउन इज सेल्फ, वो बिल्कुल परेशान हो के नहीं, वॉक अप एंड डाउन का मतलब होता है टू वॉक इन स्ट्रेस। सो वो बहुत स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वो सेल में, उसी सेल में उस जेल में जो है वो ऊपर नीचे इधर उधर चल रहा है। हिज माइंड केप्ट रिटर्निंग टू थिंक ही हैज़ नेवर सीन द गिलोटिन, बार बार वो उस मशीन के बारे में सोच रहा है जो मशीन उसने कभी देखी ही नहीं, बिकॉज पेपर काटना इज़ नॉट अ वर्क ऑफ अ सोशल हाई सोशल पीपल्स, ओके। लेकिन अब उसको उसी मशीन से उसके सर को रोल ऑन करना है, काटना है। तो यहाँ पर वो उस मशीन को लेके बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में है, स्ट्रेस में है, और वो ऐसा नहीं चाहता, वो इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना चाहता, बिकॉज उसकी अपनी एक फैमिली है, ही वॉज हैप्पी, उसकी एक बेटी है। सो ही वॉज वेरी वेरी मच अपसेट राइट नाउ। 11 गॉन फॉर एवर, 12 गॉन फॉर एवर, जैसे नहीं बोला मैंने काउंटडाउन चल रहा है कि हाँ
भैया नहीं होता कि बस समय कट रहा है कट रहा है कट रहा है, 10 9 8 7 ऐसे हो रहा है। तो पहले ना घड़ी में 11 बजते हैं, 11 हमेशा के लिए चले जाते हैं, उसके लिए तो भैया हमेशा ही के लिए जा रहे हैं बिकॉज वो खुद हमेशा के लिए जा रहा है। सो 11 गॉन फॉर एवर, 12 गॉन फॉर एवर, 11 बजते हैं। सोचते 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 वो उसका समय जाता है, 12 बज जाते हैं। ही न्यू हिज फाइनल आवर वॉज देयर, और अब सोच रहा है कि बस ये दिन ख़त्म होने वाला है, ये जो 1 बजने वाले हैं ना जो 1 बजने वाले, ज़रूर कुछ एक बहुत बड़ा मेरे साथ में ट्रेजेडी होने वाली है। The clock had just struck 1 when he heard footsteps and someone obviously drunk singing in English. अब क्या होता है, अब घड़ी में बजते हैं 1, 11 बज चुके थे, 12 बज चुके थे, अब घड़ी में बजते हैं 1, और उस 1 बजे वो अपने सेल के बाहर एक आवाज़ सुनता है, एक ड्रंकन इंसान की। ये ड्रंकन बंदा जो है ना, ये अभी नहीं बता रहे कि बंदा कौन है, लेकिन ये जो इंसान है ये इंग्लिश में गाना, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रांस है तो हिंदी में तो गाना गाएंगे नहीं या भोजपुरी में तो गाएंगे नहीं। सो यहाँ पर क्या वो इंग्लिश में गाना गाते हुए आ रहा है। द फुट स्टेप, और उसके दरवाजे के बाहर, बार्स के बाहर, दरवाजे के बाहर वो उसका पैर रुक जाता है, और फिर उसको एक और इंसान की आवाज़ नज़र आती है, वो भी इंग्लिश में कह रहा है बी क्विक जल्दी करो। द सिंगर, और सिंगर जो पहले आया था, हम ऐसे समझ सकते हैं ए और बी में, जो पहले इंसान 1 बज के आया था, 1 बज रहा था तब वो गाना गाते आया था, दैट वाज द ए। और वो दूसरा बंदा जो जो अब बात करेगा ए से, वो है बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी बंदा जो है, जो दूसरा अनदर मैन है, वो ये कह रहा है कि बी क्विक जल्दी करो। तो ए कहता है जेलर आई फील वीक, मैं बहुत कमज़ोर वीक कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा पी ली है। आई हैव ड्रंक टू मच, आई थिंक आई एम गोइंग टू फेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पक्का बेहोश होने वाला हूँ। तो बी वाला क्या कहता है, यू शैल बी ऑल राइट, परेशान मत हो, हम लोग तुमको 10 मिनट में आके यहाँ से ले जाएंगे, ओके। तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम जो अगर तुम फेंट हो जाओगे तो वी विल टेक यू फ्रॉम हियर। तो सिंगर कहता है, जो सिंगर रिप्लाइड इक्वली लाउडली, ठीक है। द अदर सिंगर मतलब नहीं होता, वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। सिंगिंग हम तभी करते हैं व्हेन वी आर फीलिंग प्लेजर फ्रॉम इनसाइड। तो वो लोग तो भाई खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, वो जो 2 लोग आए हैं ए और बी, उनको तो मरना है नहीं ना। सो यहाँ पे वो उसने सिंगिंग का कॉन्सेप्ट उठाया कि भैया वो लोग खुश हैं एंड आई एम इन ग्रेट स्ट्रेस, ठीक है। सो अब आगे क्या हो रहा है, यू मे हैव टू कैरी मी, वो सिंगर कहता है कि हाँ तुमको फिर मुझे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि वो तो शराब पिए हुआ था और दूसरा बंदा ऐसे ही ज़्यादा खुश था। एंड सेकेंड लेटर सिडनी कार्टन स्टूड इन द सेल स्माइलिंग। अब उसी समय क्या होता है, ये जो बात उसने बोली ना कि मैं फेंट होने वाला हूँ, आई एम रियली टू ड्रंक्ड, ये बात सही नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं ताकि स्टोरी समझने में इजी हो कि उसने ये बात कुछ मकसद के लिए बोली है कि मैं आज बहुत पी के आया हूँ और मैं फेंट हो जाऊँगा, मुझे यहाँ से आके ले जाना। ए ने ये बात बी से कुछ मकसद से बोली है, और ए बंदा जो है वो सिडनी कार्टन है और बी बंदा जेलर है। सो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। सिडनी कार्टन मैंने बताया था लॉयर है, और बी जो है वो जेलर है। ये लोगों को लेके जा रहा है गिलेटिन मशीन पे उनका सर कटवाने के लिए, और अब डारने की बारी आने वाली है। तो ये उससे पहले ही कि डारने की बारी आए, ये सिडनी कार्टन जो है ये आते हैं, कहते हैं कि मैं बस फेंट होने वाला हूँ एंड समथिंग बैड इज़ गोइंग टू बी हैपन, मतलब कि मैं फेंट हो जाऊँगा, तुम लोग मुझको आके यहाँ से ले जाना। तो वो बोलता है ठीक है आप परेशान मत हो, अगर आप फेंट हो जाते हो तो आई विल टेक यू फ्रॉम हियर, आई जस्ट फेच यू फ्रॉम हियर। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सिडनी कार्टन उस सेल को के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जो है डारने बैठे होते हैं। हाँ, he was in great stress, he was not okay, so you may have to carry me, shouted the singer. There were loud laugh, and second later Sydney Carton stood in the cell smiling. Darnay could hardly believe his eyes. अब यहाँ पे डारने को तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सिडनी कार्टन उसके सेल में आएंगे, तो वो बिल्कुल अपने आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था, भाई मैं क्या देख रहा हूँ। आई ब्रिंग एन अर्जेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम हर। अब देखो वो कुछ भी रिवील नहीं करेगा, बस टू द पॉइंट बातें करेगा। सिडनी कार्टन यहाँ पे बोलता है कि मुझे एक बहुत अर्जेंट रिक्वेस्ट मिली है। हर यहाँ पे लूसी उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ ने सिडनी कार्टन से एक अर्जेंट रिक्वेस्ट करी है।
अब वो क्या रिक्वेस्ट है, आई टेल यू, आई हैव नो टाइम टू एक्सप्लेन वाई। अब उसने, मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, ये सब बातें सिडनी कार्टन और डार्ने के बीच में हो रही है। सिडनी कार्टन जो है ये बात चार्ल्स डार्ने से कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि मुझे एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आई है तुम्हारी वाइफ से, बट यू मस्ट सिंपली डू, और तुमको वही करना है जो उसने बोल रखा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब क्या करना है, टेक योर बूट्स ऑफ एंड पुट माइन क्विकली यू नो। तो अब सिडनी कार्टन कहते हैं कि तुम अपने जूते उतारो, बूट्स उतारो और मेरे वाले पहन लो, ठीक है, और जल्दी करो, क्योंकि इससे पहले कि वो जेलर ना आ जाए हमारे मतलब इस सेल में, ठीक है। कार्टन, देर इज़ नो सच थिंग एंड escape फ्रॉम दिस प्लेस। अब डार्ने कहते हैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। वाई यू कॉन्ट अंडरस्टैंड, मैं अगर मैं तुम्हारे बूट्स पहन लूँ, अपने तुम्हें दे दूँ, तो भी मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। आई, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू escape फ्रॉम दिस प्लेस। हु सेड एनी थिंग अबाउट escape। अब यहाँ पे देखो आइडियोलॉजी देखो सिडनी कार्टन की, वो ये कहते हैं कि किसने तुमसे कहा है कि तुम भागो, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो बस इतना बोला है कि तुम बूट एक्सचेंज करो। तो कहता है ठीक है, तुम इतना मत सोचो, भागना वागना नहीं है, तुम बूट एक्सचेंज करो, हरी नाउ। शी वॉन्ट टू वेयर माइन, शी वॉन्ट्स यू टू वेयर माइन, यानी यहाँ पे शी जो वाइफ है वो चाहती है कि तुम मेरे शूज़ पहनो और मैं तुम्हारे, जल्दी करो। जाने उसकी बात मान लेता है। व्हेन ही हैड पुट द बूट्स ऑन, जब वो उस जूते को पहन लेता है, फिर वो लोग कोट्स को एक्सचेंज करते हैं और हैट को भी एक्सचेंज करते हैं। और फिर सिडनी कार्टन कहता है कि ये जो तो रिबन तुमने अपने बालों में लगा रखा है ना, क्योंकि उस समय लोगों के बाल फैशन थे, लंबे होते थे, तो कहता है कि ये जो रिबन तुमने अपने बालों में लगा रखा है ना, तो तुम इस रिबन को भी ना मुझे दे दो। कार्टन अब थोड़ी थोड़ी बात डार्ने को समझ में आ रही है, तो डार्ने कहता है ये पागलपन है कार्टन, अनडूइंग इट, प्लीज़ इसे मत करो। कार्टन कहता है इतना वक्त नहीं है, जल्दी दो, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग डाउन, ठीक है, सेट कार्टन। अब यहाँ पे कहता है ना, कार्टन कहता है कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो लेकिन उससे पहले तुम मुझे अपने ना बालों का रिबन दे दो। तो डार्ने कहते हैं अरे लेकिन तुम क्या लिखना चाहते हो। तो कहता है तुम बैठो और मैं तुम्हें बताता जाऊँगा कि क्या लिखना है। डार्ने बैठ जाते हैं, डार्ने सैट डाउन। ओके, फर्स्ट राइट द डेट, वो कहता है कि पहले तो डेट लिखूँ। अब क्या होता है कि उसके हाथ में एक हैंकरचीफ होती है, हैंकरचीफ नहीं होती जिसमें इंसान को बेहोश कर दिया जाता है, यू सी मेनली इन क्राइम पेट्रोल्स एंड ऑल, कि उसके हाथ में एक हैंकरचीफ होती है और वो डार्ने इसके हेड पे यानी उसके मुंह पे रख देता है और डार्ने बेहोश हो जाता है। अब देखो वो जो बंदा, ए वाला बंदा, यानी जो सिडनी कार्टन बाद में रिवील हुई आइडेंटिटी, वो ये बोल रहा था ना कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझको यहाँ से आके ले जाना। तो अब जेलर जब आएगा और वो ये देखेगा कि इनका बूट्स है, इनका कोट है, इनका ये वो है, पूरा गेटअप तो पहले वाले बंदे के जैसे, तो पक्का ये सिडनी कार्टन है, तो उनको सेफली ले जाएगा वहाँ से, ठीक है। और अब डार्ने का रोल प्ले करेंगे सिडनी कार्टन। तो ये राइट दैट फर्स्ट, तो अब वो इनके साथ ये करते हैं। सो ही होल्ड द हैंकरचीफ और डार्नेज माउथ ना, उनके मुंह पे रखते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। वो बहुत कोशिश करता है कि नहीं मैं बेहोश ना हूँ, क्योंकि डार्ने बहुत अच्छा इंसान था, वो नहीं चाह रहा था कि भाई उसके जगह पर सिडनी कार्टन अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करे। ओके, सो वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं था, बट लेकिन इतना वक्त नहीं था कि उस चीज़ को और एलैबोरेट करके बात की जाए। तो ही जस्ट डू द सेम थिंग व्हाट सिडनी कार्टन टोल्ड टू हिम, एंड सिडनी कार्टन हिमसेल्फ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ लूसी। सो मिनट लेटर, यानी I'm sorry for the background sound. Okay, now let's start ahead. So what he write that minute later trying, जब ना वो अपना बाल बांध लेता है ये सिडनी कार्टन किसके रिबन से, डार्नेस के रिबन से, तो उस समय कौन आ जाता है, बारसेड आ जाते हैं। बारसेड जो होते हैं वो बंदे होते हैं जो लेके, मतलब जो इनका सेल के एक तरीके से, आप बारसेड, क्योंकि आप लोगों ने नावल तो पढ़ी नहीं है, सो यू डोंट नो एक्चुअली हु बारसेड इज़। I hope I'll tell you. Wait. ओके, सो ये बारसेड ना एक और कैरेक्टर है, आप इसको सोलोमन फ्रॉस भी बोल सकते हो। ये एक पुलिस स्पाई है इंग्लैंड का, ठीक है, मतलब ये इंग्लैंड से आया हुआ एक बंदा है, पुलिस स्पाई है। हु बिकम स्पाई इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, जो कि स्पाई बन जाता है इस रेवोल्यूशनरी फ्रांस में भी एक स्पाई बन जाता है, ठीक है।
तो ये बारसेट का कैरेक्टर है. अगेन टोल्ड यू, बारसेट इज़ अ पुलिस स्पाई इन इंग्लैंड हु बिकम्स अ स्पाई इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस. ओके, सो यहाँ पर वो बारसेट आ जाता है. तो ये सिडनी कार्टन जो कि अब डार्ने बन चुके हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड को, मेरे इस ड्रंकन फ्रेंड को जो अभी इस समय बहुत पिया हुआ है, इसको यार प्लीज़ कैदे से लेके जाओ ना और मुझको यहाँ पे अभी अकेला छोड़ दो. ठीक है. एवरमॉन्डे, अब बारसेट ना वो बहुत चिढ़ा हुआ होता है, तो वो कहता है हाँ, नहीं हो ऐसे ऐसे एटीट्यूड में जो साउंड आता है, हाँ, यू विल सून बी लीविंग अस एवरमॉन्डे, तुम तो हम लोग को हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाले हो, तुमको क्या मैं अकेला छोड़ूंगा, तुम तो कुछ ही टाइम पे हमेशा के लिए हम लोग को छोड़ के जाने वाले हो. इट मीन्स ही वॉज नॉट इन सैड मैनर, ही वॉज वेरी हैप्पी बाय लिसनिंग दिस न्यूज़. ठीक है. इवन लाउडर, तो इसको और तेज़ आवाज़ में बोलता है. तो बाकी के जो दो जेलर होते हैं वो एज ए पिक वो ना वो तो उस समय डारने को उठा रहे होते हैं, तो ना वो हंस रहे होते हैं. उनको लग रहा होता है कि नहीं ये तो बंदा डारने है और ये जिसको लेके जा रहे हैं ये सिडनी कार्टन है. ओके, सो कार्टन को एक अजीब सा डर लगता है जब दरवाज़ा बंद हो जाता है, चाबी घूम जाती है. एंड ही वॉज लेफ्ट अलोन. नाउ ही वॉज लेफ्ट अलोन. पहले उस सेल में कौन था? पहले उस सेल में डार्ने थे. ही वॉज सिटिंग अलोन और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे. अब डार्ने तो अब बेहोश होके सिडनी कार्टन के प्लेस पे चले गए हैं. एंड नाउ सिडनी कार्टन रिजेंबल्स, अब वो रिजेंबल्स कर रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं डार्ने के जैसे, बट ही इज़ नॉट डार्ने. ओके, सो वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं. फॉलो मी. अब जेलर आता है, कहता है एवरमॉन्डे फॉलो मी. एवरमॉन्ड बोलेंगे बट आई एम टेलिंग ओवर हियर इज एवरमॉन्डे. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि वो जेलर आता है और वो ये कहता है कि भाई चलो, तुम मेरे पीछे चलो, क्योंकि अब तुम्हारी बारी आ रही है कि अब तुम जो हो तुम्हारा जो है इस दुनिया में सफ़र ख़त्म होने वाला है. ओके, सो व्हाट इट इज़ रिटन कि भाई चला जाता है जेलर, अब अलोन है यहाँ पर दिस सिडनी कार्टन. ओके, सो कार्टन ना वो पीछे पीछे चलता है. जेलर आ जाता है, बुलाता है. अब यहाँ पे सिडनी कार्टन इज जस्ट रिजेंबल डार्ने. सो यहाँ पर जेलर बुलाता है डार्ने को. कार्टन फॉलोड द जेलर अलॉन्ग डैम पैसेजेस. ना वो गीले गीले रास्तों से लेकर जाता है और फिर ऐसा करते करते 2 बज जाते हैं. ऐसा करते करते 2, क्योंकि जब 1 बजे थे तो उसने लिखना ना, असली वाले ने लिखना चाहा था कि वो अपने लेटर वेटर वगैरह लिख रहा था. ओके, लेकिन अब जब 2 बज जाते हैं तो ये जो है अब बंदा जो है इस 1 घंटे में बहुत ना, आपने देखा भी क्या कुछ हो गया. सो कार्टन ना वो जेलर के साथ जा रहा होता है अलॉन्ग द डैम पैसेजेस. क्लॉक स्ट्रक टू. क्लॉक जो है वो 2 बजाती थी जब वो एक डार्क मतलब एक बड़े से अंधेरे कमरे में एंटर करता है. 2 बज रहे होते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी 52 लोग जो हैं वो खड़े होते हैं. कुछ बैठे होते हैं, कुछ रो रहे होते हैं, कुछ रेस्टलेस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, भाई अब क्या होने वाला है मेरे साथ, मैं कैसे तकलीफ़ सहूँगा ये वो. मोस्ट ऑफ देम वो साइलेंट, कुछ बहुत ज़्यादा साइलेंट होते हैं, स्टिल होते हैं, लुकिंग एट द ग्राउंड, बिल्कुल खामोश होते हैं, आज ज़मीन देख रहे होते हैं. ठीक है. अ पेल यंग वुमेन गॉट अप व्हेन शी सॉ कार्टन एंटर्स. अब उस पेल यंग वुमेन को देखकर तो ऐसे ही लग रहा था ना, उसको भी यही लग रहा था कि बंदा, भैया ये तो डारने हैं, ये तो एरिस्टोक्रेट हैं, फ्रेंच एरिस्टोक्रेट हैं. तो वो कार्टन को जो है डार्ने ही समझती है और उसकी इज्जत में वो खड़ी हो जाती है. ठीक है, और कहती है सिटीज़न एवरमॉन्ट. ठीक है, सिटीज़न एवरमॉन्ट. सो यहाँ पर वो ये बात बोलती है, टचिंग हिम विद हर कोल्ड हैंड. और उसका हाथ कोल्ड हैंड यहाँ पे फियर को डिनोट करता है. वो लड़की इतनी ज़्यादा डरी थी कि वो अपने उन ठंडे हाथों से वो उनको टच करती है, कार्टन को डारने समझकर. आई एम द सर्वेंट गर्ल. मैं वही सर्वेंट लड़की हूँ, यू मेट इन ला फोर्स, जिसकी आपकी मुलाकात हुई थी ला फोर्स में. अब क्योंकि we are not familiar with the earlier sections of this novel, so what happened to La Force, how they met, these things are very unknown for us.
सो व्हाट हैपन कि वो अपना इंट्रो देती है कि भई मैं वही सर्वेंट हूँ जो हमारी मुलाकात हुई थी ना ला फोर्स में, मैं वही हूँ। तो कहता है अब कार्टन को कुछ तो जवाब देना था। अब एक्चुअली तो ही वॉज नॉट डार्ने कि वो हाँ उस चीज़ को मेमोराइज करे कि भाई कब मिली थी, कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, कौन हो, ये हो। सो ही से दैट ट्रू, बट आई फॉरगॉट यू वर अक्यूज्ड ऑफ। लेकिन एक बात बताओ, मैं ये नहीं जानता कि तुमको किस चीज़ का आरोप लगाया गया। Plot. What plot? I do not know. The sad smile which she said, with which she said this brought tears to Carton's eye. अब यहाँ पे क्या होता है, वो लड़की कहती है, जब कार्टन उससे ही बोलते हैं भाई तुमको क्यों लाया गया है यहाँ पे, तो ये कहती है कि हाँ मुझ पर ना ये आरोप है कि मैं प्लॉट्स ना षड्यंत्र रचती हूँ, और एक ऐसा षड्यंत्र जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता। मतलब इसका मतलब है कि इसको जो है ब्लाइंड ब्लेम किया गया है, एकदम आँख बंद करके कुछ भी ब्लेम लगा दिया गया है इसके ऊपर। और शी इज़ सो इनोसेंट एंड शी हैज़ नॉट डन एनी थिंग, बट स्टिल शी वॉज अक्यूज, स्टिल शी वॉज सेंटेंस टू डेथ। तो जब वो ये बात बोलती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है सीन कि उसकी आंखों में, कार्टन्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई एम फीलिंग अ लिटिल वीक एंड आई नीड करेज सिटीजन आई वांट। तो यहाँ पर क्या होता है, वो कहती है मैं बहुत वीक हो गई हूँ। मतलब यहाँ पे वीक बॉडी फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली, है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, उसकी सारी हिम्मत अब ख़त्म हो चुकी है। मुझे आई नीड करेज, मुझे आपसे करेज चाहिए। मैं होल्ड योर हैंड, क्या मैं आपका हाथ थाम लूँ। हर आइज लुक अप टू हिज, लेकिन जब वो उसकी नज़र उठती है और वो उनके चेहरे को देखती है, बिकॉज शी नो, भले कार्टन डज नॉट नो व्हाट एक्चुअली द गर्ल इज, वो whom she met in La Force, but that girl knows how actually Danis looks. So when he sees to the face, she was astonished, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। आर यू डाइंग फॉर हिम, क्या आप उनके लिए, उनकी जगह पे मर रहे हो, आप उनकी जगह पे अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो, शी विस्पर्ड। अब उसका करेज बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ जानने से अपने करेज को बूस्ट करना चाहती है, लेकिन अब वो देख रही कि उनकी जगह पे कोई और है, किसी और में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दे फॉर द सेक ऑफ द लाइफ ऑफ अदर पर्सन। सो उसका करेज अब बूस्ट अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी चुप कराते, कहते चुप रहो चुप रहो, क्योंकि उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन हैं, इसलिए आई एम जस्ट सेक्रीफाइसिंग माई लाइफ इन प्लेस ऑफ दाने। तो कहती है यस यस यस। तो अब यहाँ पे बात कहती, ओ यू विल लेट मी, क्या तब भी तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने दोगे ब्रेव स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे वो स्ट्रेंजर ही है ना उसके लिए, तो वो कहती है ब्रेव स्ट्रेंजर। ठीक है, तो कहती ब्रेव स्ट्रेंजर, क्या अब भी तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने दोगे। तो कहता है यस माई सिस्टर। यहाँ पे माई सिस्टर डिनोट कर रहा है कि कार्टन का बिल्कुल भी गलत इंटेंशन नहीं है किसी वुमन को लेकर, ही इज़ अ वेरी काइंड जनरस मैन, सो ही सेड दैट यस माई सिस्टर। ठीक है, येस माई सिस्टर टू द वेरी एंड, वो ना टू द वेरी एंड कहते हैं आप तुम मेरा हाथ आखिर तक थाम सकती हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें हिम्मत देता रहूँ। एट दैट सेम मोमेंट, उसी समय क्या होता है, एक कोच आता है, वो स्टॉप होता है उस बैरियर का मतलब जहाँ पे ये रूम है वहाँ के बाहर कुछ बैरियर्स होंगे, वहाँ पर ना ये कोच आता है जो ट्रैवलर्स पेपर है, जिन लोगों को जाना है यहाँ से पेरिस से लंदन की तरफ, उन लोगों का पेपर आता है, नाम आता है, वो आर हैंडेड आउट। और फिर वो गार्ड उसको चेक कर रहा होता है, हाँ ये लोग हैं कि नहीं है, फिर इन लोग को वो बोर्ड ऑन करेगा, फिर वो लोग यहाँ से जाएंगे। नाम लेता है पहला अलेक्जेंडर मैनेट, डॉक्टर फ्रेंच, डॉक्टर होते हैं ये, ठीक है, अलेक्जेंडर मैनेट डॉक्टर हैं। डॉक्टर मैनेट याद आया आपको, जो फादर इन लॉ थे डार्ने के, ये वो थे। लूसी जो उसकी वाइफ थी और डॉटर थी, वो लोग भी उसमें थे कि उन लोग को भी जाना है यहाँ से, उन लोग को लंदन जाना है। द चाइल्ड इंग्लिश जाविश लॉरे, और लॉरे जो उसका दोस्त था, मिस्टर लॉरे जिसको उसने लेटर लिखा था, ये इनका पूरा नाम है जारविश लॉरे, उनको भी यहाँ से जाना है। ये कौन है, जो उसका फ्रेंड है वो बैंकर है, ठीक है, इंग्लिश। सिडनी कार्टन, और सिडनी कार्टन जो लॉयर हैं, जो अब एक्चुअली क्या हो गए हैं, डार्ने की प्लेस उन्होंने ले ली है, और अब डार्ने उनकी जगह पे है, वो भी अब जाएगा। इट मीन्स देख रहे हो किस तरीके से उन्होंने अपने इतने सारे लोगों की लाइफ को सेव, इतने सारे लोग तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक इंसान की पूरी फैमिली को सेव आउट किया है।
द गार्ड वॉज अम्यूज व्हेन ही वॉज टोल्ड दैट द स्लीपिंग, वो गार्ड जो है ना वो कहता है कि ये क्यों बेहोश है, कहते भाई ये तो शराब पिया है, इसको जाने दो, बेहोश है भी, अपनी जगह जाकर ना अपने कंट्री में जब उसको फ्रेश एयर लगेगी ना, ये बोलता है ना, अ फुलिश यंग मैन ही वॉज सून वेक अप इन अ फ्रेश एयर ऑफ द कंट्री, इट मीन्स जब उसको अपनी कंट्री में फ्रेश एयर लगेगी ना तो ही विल फील ओके। मिस्टर लॉरी जो कि क्या है, मिस्टर लॉरी डार्ने का दोस्त है, तो वो ना वो एक्चुअली भी मिस्टर लॉरी ये बात जानते नहीं है कि ये जो बंदा बेहोश है ये डार्ने उनका रियल दोस्त ही है, क्योंकि उनको तो लग रहा था भाई डार्ने को जो अब सेंटेंस टू डेथ हो गया है, अब तो वो मरेगा, उसकी तो अब डेथ निश्चित है, तो वो ना सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देते रहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट ड्रंकन अनकॉन्शियस मैन। द गाइड जो गार्ड होता है वो सारे ट्रैवलिंग पेपर्स को साइन आउट कर देता है और सारे सिटीजन जो होते हैं वो कहते हैं कि अब हम यहाँ से जाएं, तो वो उनको कहते हैं कहते हैं हाँ ठीक है, योर रोड इज़ क्लियर, अ गुड जर्नी, आपका सफ़र अच्छा हो। भाई इतने लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है, अलोंग द पेरिस स्ट्रीट के, सो व्हाट हैपन ओवर हियर कि अब 6 डेथ कार्ड्स आती हैं। 6 डेथ कार्ड्स का मतलब नहीं, कार्ड्स यू नो व्हाट इज कार्ड्स, कार्ड्स इज़ अ कन्वीनियंस, जैसे कि बस ट्रक टेम्पो है, दैट इज़ कार्ड, मतलब ना बैलगाड़ी टाइप्स, तो वो आती है 6 डेथ कार्ड आती है, इसमें उन लोगों को 52 लोगों को रख डालना होता है, फिर उनको वहाँ से लेकर जाना होता है टू गिलोटीन, ठीक है। अब डेज वाइन का मतलब होता है, यहाँ पे डेज वाइन इज़ अगेन अ फ्रेज, यहाँ पे कोई वाइन नहीं है, वाइन का मतलब ये एक मज़ा है, डेज वाइन का मतलब दिन का मज़ा। अब ये तो दिन का मज़ा बाकी लोगों को मिलेगा ना भाई, जो लोग मरेंगे उनको देख के बाकी लोग को मज़ा मिलने वाला है, तो उन सबको ये जो डेथ कार्ट रोल्स है वो उसको लेकर जाएगी। उसमें से अमंग द 52 कुछ ने ऑब्जर्व किया द लास्ट रोड, सम ऑब्जर्व द साइट अलॉन्ग द लास्ट रोड विद अ स्टीडी एक्सप्रेशनलेस स्टेयर्स, अदर्स स्टिल वॉच विद इंटरेस्ट द वे ऑफ लाइफ एंड मैन। यानी कुछ लोग ये देख रहे थे कि कैसे बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं, और कुछ लोग ये देख रहे थे कि ये सड़कें अब आखिरी हैं, अब हम इन सड़कों को कभी देख नहीं पाएंगे, एंड नाउ वी आर जस्ट लिविंग दिस वर्ल्ड फॉर एवर एंड एवर। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो रहा होता है कि स्टीरी एक्सप्रेशनलेस, ऐसे मतलब सारे वैरायटी ऑफ लोगों के थॉट्स को यहाँ पे मेंशन आउट किया है। सेवरल क्लोज देयर आइज, कुछ लोग अपने आंखों को बंद किए हुए हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कार्ट पर बैठे हुए हैं, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू गिलोटिन। सो ये लोग जो है ना, ये कुछ लोग अपनी आंखें बंद किए हुए हैं कि नहीं भाई अब मैं और कुछ नहीं देख सकता, मैं बस सोचना चाहता हूँ, अपने आखिरी सोच में रहना चाहता हूँ। और एक बंदा तो इतना ज़्यादा उसने शराब पी ली है कि अब वो गाना गा रहा है और डांस कर रहा है, जबकि उसे पता है कि दिस इज़ द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ एंड आफ्टर दैट ही जस्ट गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड। सो द पीपल अलॉन्ग द रोड साइड के, अब जो लोग रोड साइड पे किनारे हैं, जो लोग खड़े हुए हैं ये तमाशा देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि इनमें से अरिस्टोक्रेट कौन है, इनमें से एमोंडे कौन है, ठीक है। ही इज स्टैंडिंग एट द बैक ऑफ द कार्ट। अब कोई कहता है भैया कि वो कार्ट के पीछे खड़ा है, वो उस यंग सर्वेंट गर्ल के बगल में खड़ा है और उसका हाथ थामे हुआ है, वही है वो बंदा। ही शोज नो इंटरेस्ट इन द सीन अराउंड हिम, ओनली इन द गर्ल। वो ना ये जो बंदा है एवरमॉन्डे, ये बाकी के सीन्स में ना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इट मीन्स उसका पूरा इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ उस सर्वेंट गर्ल में है, ठीक है। उसका पूरा इंटरेस्ट कहाँ है, उस सर्वेंट गर्ल में है जिसका वो हाथ थामे हुआ है, ठीक है। सो ही शोज़ नो इंटरेस्ट ओवर, ही शोज़ नो इंटरेस्ट इन द सीन अराउंड हिम, ओनली इन द गर्ल हियर एंड देयर इन द लॉन्ग स्ट्रीट ऑफ सेंट हॉर्नरे। यानी कि कौन सी स्ट्रीट पे ये कार जा रही है, इसका नाम मेंशन किया गया है सेंट हॉर्नर। हॉर्नर बोलेंगे, एवरमॉन्ट बोलेंगे, हॉर्नर बोलेंगे। क्राइज आर हर्ड अगेंस्ट हिम, कि अब उसके उसके ना आवाज़ें आ रही हैं, एवरमॉन्टे डाउन, एवरमॉन्टे, ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं। ऑल एरिस्टोक्रेट, अब सारे एरिस्टोक्रेट जो हैं वो गिलोटिन के नीचे उनका सर कटेगा, डाउन एवरमॉन्टे, मतलब दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है। ही टर्न्स टू द मैन नेक्स्ट टू हिम, विच वन इज़ ही, फिर ही टर्न्स टू द मैन, क्या होता है, ही टर्न्स टू द मैन, वो उस आदमी की तरफ पलट के देखता है भाई ये कौन बोल रहा है, तो कहता है कि ये कौन है। देयर इज एट द बैक ऑफ द थर्ड कार्ट, वो जॉन बार्सर जो थे जिनके बारे में भी मैंने बताया, वो कहता है ये थर्ड कार्ट के ना पीछे खड़ा हुआ है,
डाउन एवर मॉन्डे, लेकिन वो इंसान ये अभी भी यही कह रहा है, डाउन एवर मॉन्डे, डाउन एवर मॉन्डे। ठीक है, एवर मॉन्डे जो है फेसेस टर्न्स टूवर्ड हिम, ही सीज द स्पाई एंड देयर आइज मीट फॉर अ मोमेंट, ना उनकी आंखें एक बारी मिल जाती हैं। वो खुद किसी से अभी फाइनली फेस टू फेस नहीं मिलना चाहता, बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट कि किसी को ये ना पता चले कि दैट आई एम सिडनी कार्टन। ओके, सो क्लॉक रैन आउट 3, अब घड़ी में बज जाते हैं 3 और वो कार्ट गिलोटिन पहुंच जाती है। सो पहले बज रहे थे 11, समय गुजरा 12 बजे, फिर 1 बजे, 1 बजे उसने लेटर लिखना कोशिश किया, अपने ओरिजिनल डार्ने ने लेटर वगैरह लिखा, अपने दोस्त को मिस्टर लॉरे को, अपने फादर इन लॉ को लिखा, डॉक्टर एमेंट जो थे, और अपनी वाइफ को लिखा, डूसी को। इतना लिखने बाद वो बस बैठा ही था, तब उसके उसी 1 घंटे में 1 से 2 के बीच में उसके साथ ये ट्रेजेडी होती है कि सिडनी कार्टन उसके सेल में आते हैं। वो लोग क्लोथ एक्सचेंज करते हैं, बूथ एक्सचेंज करते हैं, एंड बूथ्स एक्सचेंज करने के बाद वो लोग जो है रिबन्स वो अपना देता है, और फिर वो अनकॉन्शियस उसको बेहोश कर देता है, उसको अपनी प्लेस पे उसको रख देता है। फिर 2 बजे क्या होता है कि वो सिडनी कार्टन यानी कि जो अब डार्ने बन गया, उसको यहाँ से वहाँ से उस सेल से निकाल के लेके जाया जाता है, और फिर एक डार्क रूम में फिर ये सारी ट्रेजेडी होती है कि वो एक सर्वेंट गर्ल से मिलता है, उसको ये पता चल जाता है कि भाई ये सिडनी कार्टन है, ही इज़ नॉट डार्ने, तो उसको सुपर करेज मिल जाता है, उसका करेज बूस्ट अप हो जाता है। ओके, अब उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, तो फिर वो लोग स्ट्रीट ना सेंट हॉनर की इस पैसेज से गुजर रहे होते हैं उस कार्ट रोल पे, और लोगों के मज़े हो रहे होते हैं कि भैया अब एरिस्टोक्रेट जाएगा, या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो छेड़ भी रहे हैं डाउन एरिस्टोक्रेट्स ये वो। अब बज रहे हैं 3, क्या होता है इस समय कि इन फ्रंट ऑफ द टेरेबल मशीन, वो जो भयानक सी मशीन है, चेयर्स, लोग उसके अगल बगल चेयर लगाए हैं, वुमेन लोग अपने बातों में लगी हैं, मतलब उनको पता है कि आज का एंटरटेनमेंट कुछ होना है। एवो मॉन्डे जो है वो अपने कार्ट से निकलता है विद द सर्वेंट गर्ल, ही टर्न्स बाहर बैक टू द मशीन, वो मशीन की तरफ अपनी पीठ करके बैठ जाता है जो कि ऑलरेडी अभी काम कर रही है। मतलब ना मशीन को देख नहीं सकते भाई कि अब आप ऐसे उल्टा लेटोगे और एवरीथिंग गॉट टू बी एंड। सो यहाँ पे होता है कि वो मशीन की तरफ बैक करके बैठ जाता है। होल्डिंग हिज हैंड शी सेज आई थिंक यू वर सेंट टू मी बाय हेवन, आई थिंक यू वर सेंट टू मी बाय हेवन। वो कहती है होल्डिंग हिज हैंड, वो लेडी जो सर्वेंट है वो ये कहती है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, यू वर सेंट टू मी बाय हेवन, तुम ज़रूर, आप मुझको भी ज़रूर हेवन लेके जाओगे, एंड यू टू मी। और वो सिडनी कार्टन कहते हैं हाँ माई डियर चाइल्ड, यू टू मी, कीप योर आइज ऑन मी, तुम बस कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, बस मेरे पर नज़र रखो कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। थिंग्स ऑफ नो अदर ऑब्जेक्ट, और किसी भी चीज़ पर ध्यान मत दो। आई थिंक ओनली ऑफ यू, मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोच रही हूँ। ठीक है, विल दे बी क्विक, सॉरी, क्या ये सब जल्दी हो जाएगा? दे विल बी क्विक, हाँ ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। दे स्पीक एज इफ दे वर अलोन, ऐसे बातें कर रहे थे, मतलब ये लोग एक्चुअली इतनी बातें नहीं कर रहे थे, आंखों से बातें हो रही थी, हाथों से बातें हो रही थी, ऐसे लगे उनके दिल बात कर रहे हैं। और ये ऐसे यूनिवर्सल मदर, यानी एक ही माँ के 2 बच्चे हों। ब्रेव एंड जेनरस फ्रेंड, योर काइंड स्ट्रॉन्ग फेस गिव मी सो मच सपोर्ट, इज़ द मोमेंट कम। अब वो लड़की बोलती है तुम्हारे जैसा बहादुर जेनरस बंदा, इतना काइंड हार्टेड, जितनी ब्रेवरी से इन सब चीज़ों को जो है हैंडल कर रहा है, क्या वो वक्त आ गया है? ये कहते हैं हाँ वो वक्त आ गया है। शी किसेस हिम, वो उसको चूमती है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, शी किसेस हिम, वो एक दूसरे को, मतलब वो उसको सिडनी कार्टन को चूमती हैं वो लेडी, एंड शी से गुड बाय, नो दे विल सी ईच अदर अगेन सून, और उन लोगों को पता है कि दे विल सी, वो लोग हेवन में ज़रूर साथ होंगे। हर हैंड डज नॉट ट्रेम्बल एज इट लीव्स हिज, मतलब उसका हाथ नहीं काँप रहा था जब वो सिडनी कार्टन ने उनका हाथ छोड़ा था। द निटिंग वुमेन काउंट 22, अब यानी कि अब नंबर किसका था? 22 का। 22 नंबर पे कौन था? सिडनी कार्टन। मीन अभी भी और सारे लोग बाकी थे, 52 में से 22 जो थी वो इनका। आज कार्टन सो द क्राउड पुश फॉरवर्ड टू सी हिम डाई, जब कार्टन ये देख रहे थे कि पूरा क्राउड आगे बढ़ रहा है उनको मरते हुए देखने के लिए, जैसे कि ए ग्रेट मास ऑफ वाटर हर रिपीटेड अ लाइन, तो उन्होंने बाइबल से एक लाइन बोली, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, यानी कि मैं रिजरेक्शन हूँ, नहीं जिस तरीके से मुझे जैसे जीसस क्राइस्ट को रिजरेक्ट कर दिया गया था, उनको जो है ऐसे मैं बोल नहीं सकती बट उनको टांग दिया गया था ऑन द वुडन क्रॉस,
तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं, एज ही स्टार्टेड डाउन इन द ब्लड स्टेन बास्केट और स्टेयर डाउन, और जब उसने उस ब्लड स्टेन बास्केट को देखा, आई गो टू फार फार बेटर रेस्ट आई हैव एवर नोन, मतलब मैं बहुत दूर चला जाऊँगा और फिर मैं कभी नहीं आऊँगा। अब नंबर आता है 23 और 23 पे होती हैं वो लेटी। People said that night that when his head was held up, his face was most peaceful that I had ever seen. और जब उसके सर को ना held up यानी उसके सर जब काटा गया तो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा शांति थी, डर नहीं था उसके चेहरे पे। ठीक है, सो ये स्टोरी थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द स्टोरी। ओके, please like, share and subscribe for getting more and more videos related to this. Hope you like it.